Prevention and treatment of graft rejection means whenever there is certain kind of graft or tissue rejection or transplant rejection would be there, how we can prevent it, or what kind of treatment you can say that we can do in order to make that rejection into acceptance. Okay, so decrease in tissue rejection, it would causes the increase in survival of the graft. Means अगर हम जो rejection है उसके chances को कम कर दें तो that would be the possibility कि उससे जो tissue की acceptance है और उसका जो survival rate है जो transplanted tissue है वो ज़्यादा हो जाए, and that's why it is very important. So the successful graft, usually whenever we talk about the tissue graft or tissue transplantation, so most of the cases the kidney and the cornea, जो आई का जो graft है और kidney का, it is has a high rate of success. That's why these are considered as a successful graft as compared to the other graft. Or the how we can say that means if we want to make a tissue or graft or transplantation accepted or successful, that means that we should have a better understanding of the immune response as well as the major histocompatibility complex. क्योंकि जो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है जो कि ट्रांसप्लांटेशन एंटीजेंस हैं उनकी अगर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उनकी कंपैटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट होगी तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होगा, और अगर डिस्पैरिटी होगी और मिसमैच होगा तो देयर वुड बी द पॉसिबिलिटी दैट इम्यून रिस्पॉन्स वुड बी जनरेटेड. Okay, the success of the graft means the tissue that is going to be transplanted, the success is based on the following factors. The first one is the donor selection, the second is the recipient preparation, and the third one is immunosuppression. All these process you can say that or factors, these are very important for making a tissue or graft successful or accepted by the host. Okay, donor selection means the donor that is going to be selected for giving or for donating the tissue to recipient. That means that it should have an MHC compatibility with the recipient. Means उसकी tissue matching जो है वो अच्छी होनी चाहिए. Means HLA, human leukocyte antigen और MHC में compatibility होनी चाहिए. Okay, identical twins is the ideal donors. Means जब हमने बात की थी the types of the graft, the very important graft is called as isograft. Isograft से मुराद ये है कि जो दो different individuals with same genetic makeup, जिनका genetic makeup same है, और genetic makeup किन individual का same हो सकता है जो कि identical twins हों. ठीक है, तो identical twins would be considered as an ideal donors for the recipient. Okay, क्योंकि due to the similarity in the genetic makeup of both individual, means donor and recipient. Okay, so HLA matched siblings have 95 to 100% chance of graft success. Means ऐसे individuals जो donor और जो recipients हैं अगर उनकी MHC और HLA they are matching with one another, so there is a possibility कि 95 to 100% सक्सेस या टिश्यू एक्सेप्टेंस जो है वो होगी, और देयर वुड बी वेरी लीस्ट चांस ऑफ टिश्यू रिजेक्शन. सो ऐसा डोनर सेलेक्ट किया जाए जिसकी टिश्यू मैचिंग या MHC और HLA मैचिंग जो टाइपिंग है HLA टाइपिंग वो रेसिपिएंट के साथ मैच करनी चाहिए. इट शुड बी कंपैटिबल. Okay, so one haplotype parent means or sibling must HLA D matched. Means बाज़ दफ़ा जो क्लोज आपके फैमिली मेम्बर्स हैं लाइक सिबलिंग्स की बात करते हैं हम, तो उसमें जो सिबलिंग्स पे जो हेप्लोटाइप है उसमें एक HLA जो D का जो क्लास 2 से रिलेटेड है, इट हैज़ एन सिमिलैरिटी, और वो सिमिलैरिटी क्या करती है, वो हेल्प आउट करती है फॉर द सक्सेसफुल टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन, और उसकी वजह से जो रिजेक्शन है वो कम होती है.
And another important factor that is very important regarding to the donor selection, that it should be ABO compatibility. Means के जो blood group है, जो major blood group that is considered as ABO blood group system, उसकी जो एंटीजेंस हैं या उसकी जो कंपैटिबिलिटी है रेसिपिएंट के साथ होनी चाहिए, ताकि जो डोनर है और रेसिपिएंट उसके जो ब्लड ग्रुप हैं वो सेम हो, और जब वो सेम होंगे तो डेट मीन्स दैट देयर वुड बी लीस्ट चांस ऑफ डिस्पैरिटी। मीन्स के एटलीस्ट ब्लड की कंपैटिबिलिटी होगी तो इट वुड कॉजेज द improvement or success of that particular grafted or transplanted tissue. Okay, the next important thing that means the recipient preparation means जो इंडिविजुअल जिसमें टिश्यू को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है डेट इज कॉल्ड एज रेसिपिएंट, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। सो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेट मीन कि रेसिपिएंट जो है वो शुड बी इन अ गुड हेल्थ, मीन्स उसकी फिजिकल जो हेल्थ है, अपरेंट हेल्थ, वो अच्छी होनी चाहिए, एंड with no infection means he or she is not suffering from any sort of infection। ठीक है, तो जब इन्फेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इन्फेक्शियस स्टेट में आपको टिश्यू ट्रांसप्लांट करेंगे तो देयर वुड बी द पॉसिबिलिटी कि वो इन्फेक्शन की वजह से, जैसे हमने डिस्कस किया, कि इट विल कॉजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर और रिजेक्शन ऑफ दैट टिश्यू, सो इट शुड बी विदाउट एनी इन्फेक्शन। Similarly, the recipient should not have any active malignancy। Means कि जो recipient है उसमें कोई potential malignancy, कोई कैंसर या कोई ट्यूमर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कैंसर और ट्यूमर होगा तो इट वुड बी द पॉसिबिलिटी कि आफ्टर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन जो ट्रांसफॉर्म सेल्स हैं, जो ट्यूमर सेल्स हैं, दे कैन डैमेज दैट पर्टिकुलर टिश्यू, अगर तो वो मेटास्टैटिक इन नेचर हैं, और उनके अगेंस्ट जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा तो उसके साथ ही वो जो टिश्यू ट्रांसप्लांट हुआ है वो भी डैमेज हो सकता है, उसकी डिस्ट्रक्शन और रिजेक्शन के चांसेस आर देयर। ओके, देन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द एब्सेंस ऑफ एनी सिस्टेमिक डिजीज, के मीन्स किसी किस्म की सिस्टेमिक डिजीज नहीं होनी चाहिए रेसिपिएंट में। इट विल कॉजेज दी फॉर बेटर रिहेबिलिटेशन, मीन्स इसमें जो टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन और ग्राफ्ट के जो आउटकम हैं वो अच्छे आ सकते हैं अल्टीमेटली, अगर ऑल दीज थिंग्स वुड बी देयर। कोई सिस्टेमिक डिजीज नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर यू कैन से दैट समटाइम्स, और some other kind of disorder would not be there जो कि graft को damage कर सके। That's why this is important thing. Okay, and another important thing that the recipient should not be hypertensive। That means that is related to the metabolic disorder, कि hypertensive नहीं होना चाहिए, ताकि वो जो टिश्यू है वो जब ट्रांसप्लांट हो तो उसमें जो ब्लड फ्लो है इट वुड बी नॉर्मल। अदरवाइज इफ हाइपरटेंसिव तो वो उसको डैमेज कर सकता है, ट्रांसप्लांटेड टिश्यू को उस पर बर्डन हो सकता है। ओके, ट्रांसप्लांटेशन से पहले डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट 1 to 5 ट्रांसफ्यूजन्स ऑफ 100 to 200 ml ऑफ डोनर ब्लड एट 1 to 12 वीक इंटरवल। मीन्स के जो डोनर का ब्लड है वो रेसिपिएंट को 5 एटलीस्ट 1 से 5 ट्रांसफ्यूजन्स जो हैं वो रेगुलरली दी जाए प्रायर टू ट्रांसप्लांटेशन। क्यों? क्योंकि उसकी जो एबीओ ब्लड ग्रुप है, जो कंपैटिबिलिटी इज बीइंग देयर, ताकि उसके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप हो जाए। और डेफिनेटली एबीओ कंपैटिबिलिटी तो होगी, लेकिन जब ब्लड डोनर का रेसिपिएंट में जाएगा रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, तो उसमें एक क्या कहते हैं टॉलरेंस यू कैन से दैट वो डेवलप होगी, और अल्टीमेटली इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द रेसिपिएंट और द ग्राफ्टेड टिश्यू। ओके, देन द लास्ट थिंग इज दैट इज इम्यूनोसप्रेशन, कि मीन्स टिश्यू ट्रांसप्लांट करने से पहले अगर इम्यूनोसप्रेशन कर दी जाए। इम्यूनोसप्रेशन से मुराद ये है कि जो होस्ट का इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस कर दिया जाए, ताकि वो आने वाले टिश्यू को, जो ग्राफ्टेड टिश्यू है, उसको एक्सेप्ट कर सके, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ना कर सके, और उसके अगेंस्ट टॉलरेंस शो कर सके। सो मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द एलो ट्रांसप्लांटेशन, जब पता है कि जो डोनर और रेसिपिएंट है उनकी ट्रांसप्लांटेशन एंटीजेंस सिमिलर नहीं है, तो देन इम्यूनोसप्रेशन इज वेरी एसेंशियल। So how we can do it? We can use various immunosuppressive drugs like the cyclosporin A, that it has an function कि जो IL-2 की सिंथेसिस जो है फॉलोइंग एंटीजन, जब एंटीजन उसके साथ बाइंड करती है
टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजिस के साथ, तो IL-2 की सिंथेसिस उसके सिग्नल ट्रांसडक्शन को इनहिबिट करती है, और उससे क्या होता है, सेल्स की डिफरेंशिएशन और एक्टिवेशन नहीं होती और इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता. Similarly, there is another important that is called as rapamycin. It causes the inhibition of the signal transduction. Signal transduction नहीं होगा, इम्यून सेल्स जो हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे और अल्टीमेटली इम्यून रिस्पॉन्स would not be there. So in this way we can say that there is the inhibition of the T cell proliferation and activation is being there. T cells proliferate नहीं करेंगे, एक्टिवेशन शो नहीं करेंगे, और एक ट्रांजिटरी यू कैन से दैट इम्यूनोसप्रेशन वुड बी देयर, ताकि वो जो एलो ट्रांसप्लांट है उसके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप हो जाए इनसाइड द होस्ट, एंड इट कैन बी successful, it can be accepted by the host, not to be rejected by the host.